जुडिशियल अप्रोच के लिए। तो सबसे पहले मैं अस्थाना सर आपको आमंत्रित कर रहा हूं बातें रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका जो प्रोग्राम है मस्तक पर दस्तक, रियली ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और जिसके माध्यम से आप बहुत सारी जानकारियां सबको पहुंचाने जा रहे हैं और पहुंचा भी रहे हैं। मैं इसका आप सभी को धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मैं थोड़ा एक जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर एक थोड़ा जर्नी ले चलना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातें जो आज हुई हैं वो कभी न कहीं एक कुछ बातों पे आके टिक रही हैं, जो कि मैं उसको कंक्लूजन पार्ट में ले जाऊंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। उसके पहले मैं थोड़ा जो हमारे लॉज हैं उनकी एक जर्नी बता दूं, कि जिससे कि शुरुआत में जो हमारे इनिशियली जब हमारा कंप्यूटर एज शुरू हुआ, और उस कंप्यूटर एज में ठीक है, बहुत ज़्यादा एक तरह से तो जो पुराने लोग हैं उनको पता होगा कि भाई कंप्यूटर एज कहीं बहुत ज़्यादा ये था कि भाई नहीं आए और वैसे हो, फाइनली कंप्यूटर एज आया। और धीरे धीरे उसकी जानकारियां बढ़ती गईं, और ये हुआ कि अब इसका कहीं न कहीं जो थेफ्ट की बात कहते हैं हम, या फिर फ्रॉड की बात कहते हैं, या फिर हम किसी प्रकार का जैसे जो एक सॉफ्टवेयर उसमें डाल दिया जिसको कि हम वायरस के नाम से जानते हैं, कि कहीं ना कहीं दूसरे को डिस्टर्ब कर देना, और जिसकी वजह से कि दूसरा या तो काम न कर पाए, या तो उसका हम डेटा निकाल लें उसके बिना मर्जी के, और सारी चीजें आगे। देन ऐसे ही फिर यूएनओ ने एक ट्रीटी के द्वारा, जिसको कि हम मॉडर्न लॉ कहते हैं, एक इनिशिएट किया। और उसी के तहत जो हम बीच में अपने आईटी एक्ट शुरुआत किए, जो आईटी एक्ट 2000 के का रहा, जिसमें कि जैसे कि कुछ हम देखें कि दिस हैज बीन स्टार्टेड for e-banking, e-commerce and private sector amongst the others. एंड जो आगे रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सेक्शन 43A की बात कहूँ, जो कि रिगार्डिंग बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोड्यूसेस टू प्रोटेक्ट द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड, डैमेज, एक्सपोज्ड एंड मिसयूज्ड। Or further, if we talk about in the information technology, that is Amendment Act in 2008, many things has been developed and changed also, and it was passed in the year of 2008 and came into the force in 2008, and this was basically it was added and updated for redefined terms for current use, expanding the definition of cybercrime and validation of electronic signature. And it also strongly encourages companies to implement better data security practices and make them liable for data breach. And the act also applies to any individual, company, or organization that uses computer resources, computer network, or other information technology in India. And for covering the important the information security practices for the cybercrime and data protection over nearly this 9 chapter, and in 117 sections, and it has the some responsibility. First thing, the improving cyber security measures the incident to certain, and preventing unauthorized, unlawful use of computer system, then protecting private data and information from cyber terrorism, that is DDoS attacks, phishing, malware, and then identity theft, etc., etc.
Then legal recognition of cyber security of organization, safeguarding e-payments and electronic transactions, and monitoring the decryptions of electronic records, establishing a legal frameworks for digital signature, recognizing and regulating intermediaries. And further, we have came into the information technology rules in 2011. Under this act, this another important segment has been added with the cyber security legislation. And the most significant amendments included that provision for the regulation of intermediaries, updated penalties, and violation fees for cybercrime, cheating, slanders, and non-consequential phishing of private images. And in that, one of the more thing that has been added with the Indian SPDI rules in 2011 for reasonable security practices. This regulation are identified by the Indian SPDI rules in 2011 as the international standards. As such, Indian companies aren't obliged but are highly advised for what to implement these standards, which can help meet the reasonable security practices under the Indian jurisdictions. Then in 2013, we have came into the new policy that is National Cyber Security Policies that has been developed by the Department of Electronics and Information Technology, and which has been released the National Cyber Security Policy in 2013 as a security frameworks for the security and private organization to better protect themselves from cyber attacks. And this has a different goal, which is that creating a resilient and safe cyberspace for individual, organization, and the government. Then monitoring, safeguarding cyber infrastructures and information, reducing the vulnerabilities and strengthening the defenses against the cyber attacks. Then creating frameworks, capabilities, and vulnerability management strategies for minimizing the faster prevention and responding to cyber incident and cyber threats. Encourages organizers to develop cybersecurity policies that align with the strategic goals, business workflows, and general best practices. In 2021, we have again said with the IT rules, this new amendment aims to allow ordinary users for digital platforms to seek compensation for their grievances and demand accountability when their rights are infringed upon, as well as institute additional due to this some requirement of the organization. This rules also distinguishes between the smaller and more significant social media intermediaries based on user numbers and places a much heavier burden on larger social media intermediary, which concern with the personal data protection. In addition, some of the points has also focused to this requiring the intermediaries to inform user about the rules, regulation, privacy policies, terms, and condition for users its services. And then further, this requires the intermediaries to designate a grievance officer that can address and resolve user complaints about the violation of IT rules. And in 2020, we came with the National Cybersecurity Strategies. And further, this RBI has also initiated with the concept of KYC, that is Know Your Customers. And this one has the basic emphasis over the processes are standards and practices used worldwide and mandated by the RBI. This KYC is
tracking and monitoring of the customer data security for improved safeguarding against the fraud and payment credential thefts. It requires bank, insurance companies, and other digital payments companies that carry out the financial transaction to verify and identify all their customers. And this has the following security steps also. One is you're having a knowledge-based questionnaires test for verifying the customer identities, then implementing pre-screening KYC verification methods like email verification, phone verification, device ID intelligence, and reputational data amongst others. Then using AI-based technology and machine learning for verifying documents and government-issued IDs. And this has also using the biometrics like fingerprints and facial recognition to verify a user identity and maintain a database of customer for verification purposes. RBI has also amended its act in 2018, which has the different guidelines. And further, in 2023, we came with the Digital Personal Data Protection Act. And everyone is aware on August 11th, this act has been formed by the central government, passing the long-awaited Digital Personal Data Protection Act. And this act, it's a broad definition on the personal data, which has the some objectives. One is to only appoint or involve third-party data processors who are obliged to follow DPDP procedures by legal contract. Ensure the personal data is complete and accurate before using the data to make a decision that affects the data principle. Or then implement the necessary organizational measures and technical protocols to ensure ongoing compliances. Then implement the reasonable security safeguard and audits to protect the personal data and prevent personal data breaches. Like this, the DPDP has established the Data Protection Board of India and outlined a new classes of data fiduciaries. And further, the significant data fiduciary as organizational determined to pose increased risk based on the government assessment. Basically, I would like to mention here that in different three cases, the government has Supreme Court has given a guideline. One is the writ petition has been filed in the case of the People Union for Civil Liberties versus Union of India. This is regarding some guidelines. Near about 5 to 6 guidelines has been issued by the Supreme Court with relation to the Section 66 of IT Act 2000. And in that, the court has issued the direction. First is it needs no reiteration that Section 66A of the IT Act 2000 has been found by this court in the Shreya Singhal case to be violative of the Constitution of India. As such, no citizen can prosecuted for alleged violation of offense under the Section 66A. And then in the case where the alleged violation of Section 66A of 2000 IT Act 2000 has been projected and citizens are facing prosecution for such alleged violation, the reference to Section 66A of the 2000 Act from these all these crimes or criminal proceedings shall stand deleted. So, and then the last one I should read here. Whenever any publication, whether the government, semi-government, or the private about the information technology is made and Section 66A is quoted,
The reader must adequately be informed about the fact that the provision of the 66A have already been found by this court be violative of the Constitution of India. And in second case, again, this is X versus Union of India others. This Justice Subramaniam Prasad has delivered this guideline judgment. In this, many of the direction has been given. This is the last suggestion I should read here. As a long-term suggestion, as a trusted third-party encrypted platform may be developed by MEITY in collaboration with the various search engine under the Rule 3 of subclass 2 subclass C for registering the offending NCII content or the communication link by the user or victims. Accordingly, the intermediaries in question may assign cryptographic hashes identifiers to said NCII and automatically identify and remove the same through the safe and secure process. This would reduce the burden on the victim's user to constantly have to secure the internet for CII pertaining to them and having to request for the removal of individual URLs. Utmost importance should accorded to the fact that the privacy of the users must remain inviolable and the data collected for the purpose of using the hash matching technology is not stored and misused. On account of the vulnerability of the data involved, the platform must be subject to greatest of transparency and accountability standard. Here, after listening, even I was little bit early and involved regarding listing of the expert. Some of the suggestions from my side on this forum to the people कि that सबसे पहली बात ये होती है कि लॉज हैं, मैकेनिज्म है, सब कुछ है, लेकिन लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंची है। और खासकर जो मैं इस प्लेटफॉर्म से कहना भी चाहूंगा लोगों तक कि एक तो हम जैसे जो संस्थाएं हैं, जो आप जैसे मस्तक पर दस्तक का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो लोगों तक ये अवेयरनेस जरूर पहुंचे और कि कम से कम ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं और वो लोग भी जुड़े और उनको ये बात तो जरूर पता हो कि इस तरह से फ्रॉड हो सकता है और ये मैकेनिज्म है और इस तरह से आपको बचना चाहिए। ऐसे चीजें आप स्टेप कर सकते हैं। दूसरी बात, कुछ जगहों पे ऐसे भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाए, जो कि ऐसे लोगों को कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम करके और इस तरह से बताएं कि आप इस तरह इन्वॉल्व न हो। अगर क्योंकि शुरू में ऐसे जैसे कि एक किसी कोई बता रहा था अपना किस्सा कि भाई उनको एक तरह से ल्यूरिंग दी गई, उनको इस तरह से बताया गया कि भाई ठीक है आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बात लगती है कि अगर उनको पता होता है किस तरह से बातें हैं या कुछ जो ओल्ड लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं या किसी दूसरे से हेल्प लेते हैं, तो जिससे कि वो इस तरह के फ्रॉड में न पड़े। हाँ, अब ये जो बातें आती हैं कि इसके बाद जो मैकेनिज्म है जो वो एक गुड लेजिस्लेशन की तरफ भी इंडिकेट करता है कि जो हमारे लेजिस्लेशन है, क्योंकि आमतौर पे अगर देखा जाए कि जितने भी हमारे वो हैं आईटी सेक्टर्स हैं या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस नए डेवलपमेंट में नया नया कुछ जरूर आ रहा है और उन नए चीजों के लिए जरूरी है कि या तो एक तो गुड लेजिस्लेशन बने, वैसे ही मैकेनिज्म हो, वैसे ही लोगों को तैयार भी किया जाए जिससे कि इस तरह के फ्रॉड, थेफ्ट और स्टीलिंग ना हो। इसमें एक चीज और भी बताई जा सकती है कि जैसे कि जो पुराने जो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं रही है, लेकिन अगर पुराने लोगों से अगर मुलाकात करें तो वो अभी भी
या तो चेक साइन करना पसंद करते हैं या तो ड्राफ्ट से कुछ इस तरह से पेमेंट करना पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा लगता है कि अगर मैंने वो बटन दबा दी या ओके कर दिया, क्लिक कर दिया, तो मेरा ट्रांजैक्शन किसी और के उसमें चला जाएगा। और मोस्टली या तो उनकी हार्ड मनी होती है या तो पेंशन के अमाउंट होते हैं। तो वो उनको भी गाइड करने की जरूरत है कि नहीं, आप इसमें सेफ हैं। और ये कहीं ना कहीं बैंक्स की ड्यूटी बन जाती है कि वो लोगों तक, जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि कस्टमर जब भी जाता है बैंक्स में और वहां पे पहुंचता है तो इमीडिएटली उनको या तो किसी उसके ऊपर टाल के दे दिया जाता है कि आप इनको थोड़ा गाइड कर दीजिए, या तो उनको प्रॉपरली अटेंड नहीं किया जाता है कि जिससे कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, उनको बात पे पता चल सके कि मैं इसमें कैसे इस ऐप को यूज कर सकता हूँ, कैसे इस ऐप का ऑप्टिमम यूज में ला सकता हूँ। तो ये चीजें हैं। और जहां तक एक बात और रही, जैसे कि हमारे फ्रेंड स्पीकर्स एक्सपर्ट थे, उन्होंने बताया कि रिगार्डिंग फेसबुक की बात जो है, वो जो फेसबुक की बहुत सारे ऐसे, इवन मेरे पास भी, मैं अगर अपना शेयर करूं तो मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे इनविटेशंस आए हुए हैं जो वैसे ही हैं। और मुझे लगता है कि 1-1.5 हजार के करीब इनविटेशन है जिनके की जो आइडेंटिटी है, जो उनका आईडी है, वो ब्लॉक्ड है। अगर मैं वेरीफाई करूं वापस जाके तो वो ब्लॉक्ड में आता है, और दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग। अगर उनका आप मैसेज भी कर दें तो भी रेस्पॉन्ड नहीं। तो उसी समय हमें भी सोच लेना चाहिए कि भाई देख, मुझे इनको रेस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर एक्चुअल में ये उस तरह से एक एक फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहते हैं, जो जो कि हमारा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं। और हाँ, ऐसी चीजों को ब्लॉक किया जा सकता है। मैं अपने साथी स्पीकर्स का भी ध्यान रखते हुए अब यहीं पे विराम देना चाहता हूं, क्योंकि समय बहुत कम है। सर, माइक आपको हैंडओवर करता हूं। आपने मुझे बुलाया, और सभी स्पीकर्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी धन्यवाद। और स्पेशली शुभ्रा मैम को कि दैट शी हैज टेकन लीड, और जिसकी वजह से आज आज हम सभी लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और कुछ न कुछ अपनी बात को शेयर कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू डॉक्टर अस्थाना साहब। आपकी बहुत बातें हैं, आपने जैसे कहा कि पॉइंट्स लेता हूँ, आपने जुडिशली बातें बहुत सारी की, बहुत सारे कानून की जानकारियां भी दी, क्या क्या होगा। प्रमुख बात, मस्तक पर दस्तक के द्वारा इसको पहुंचाया जाए, अधिक लोग तक पहुंचाया जाए, रीच में हम कोशिश पूरी बना कर रखे हैं। और मैं अपनी टीम को भी बोल रहा हूँ कि कोशिश करो कि कैसे अधिक से अधिक लोगों तक इसके जो पोस्ट वीडियोज है वो पहुंचाया जा सके, और मेरी टीम उस पर लगातार काम कर रही है। तो हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे पहुंचे। और मैं अपने यहाँ की जो पुलिस का महकमा है हमारे यहाँ पे, हमने एएसपी और एसपी से भी बात कर रहे हैं कि हम फिजिकली भी लोगों तक कैसे पहुंचे, और उनके माध्यम से खास करके जो बहुत कुछ देखा वो टीनेज है और ओल्ड एजेस है, इन दो जो ऑडियंस है इनको हम पकड़ना चाहते हैं। तो स्कूल्स हैं और जो ओल्ड एज के जो ग्रुप्स हैं उनके साथ बैठ करके पुलिस के द्वारा हम कुछ बातें वहां तक पहुंचा सके। तो ये मुहिम मेरा भी यहाँ से चालू होगा, डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी की ब्लेसिंग से। लेजिस्लेटिव की आपने बात किया शामिल हो, तो मैं उसी में हमारे यहाँ के जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, एमएलएस हैं, हम चाहते हैं कि वो भी इसमें आए, शिरकत करें, ऐसे उन्हें हम गेस्ट बुलाए, माला पहनाए, और वो इस पे अपने बात रखें। जब वो आएंगे तो बहुत सारी ऑडियंस वैसे भी आते हैं और इसको हम समझा पाएंगे, क्योंकि साइबर क्राइम पे रोज बात करना पड़ेगा, मस्तक पर दस्तक एक ही दिन देने से काम नहीं होगा। मैं श्योर करता हूँ आपको कि जो ओल्ड की बात भी चल रही है और बैंक का है। अब हम थोड़ा सा अपने, आज वैसे भी जिस शहर में मैं बैठा हूँ रायपुर में, यहाँ पे आज प्रेस क्लब का इलेक्शन चल रहा है। तो जो भी प्रेस क्लब के नए प्रेसिडेंट बन करके आएंगे, हम एक प्रोग्राम प्रेस क्लब के अंदर में करेंगे, और हम अपने उन बंदों को और उस पत्रकार मित्रों को शामिल करने की कोशिश करेंगे जो बैंक के सेगमेंट को देखते हैं, ताकि बैंक के अधिकारियों को भी साइबर क्राइम की इस फोरम पे आगे लाया जा सके और उसके ऊपर समझा जा सके। और कुछ बातें जो यहाँ पे पटेल जी और चतुर्वेदी जी ने कही थी उसको भी हम शामिल कर सके, और जो उनके सुझाव थे उसको भी क्रियान्वयन बैंक के द्वारा करवा सके। तो ये मस्तक की दस्तक की ओर से डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी की तरफ से मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ अस्थाना साहब। इसी के साथ मैं डॉक्टर तपन मोहंती जी को अवगत करता हूँ।
उनके विचार के लिए डॉक्टर मोहंती साहब। बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद पंडित जी। अशोक जी ने कुछ काम आसान कर दिए। लेकिन जो बात मेजर इशू में कहना कहना चाहूंगा, क्योंकि पहले जो बात किया गया और हम सुनते हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बात जो साइबर क्राइम के बात होता है और खास तौर पे जो इंटरनेट बेस्ड क्राइम हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमें इसमें एक बार में बात नहीं होगी, उसके पर बार बार बात करनी पड़ेगी, उसके बारे में अवेयरनेस लाना पड़ेगा। और उसमें जैसे पहले उन्होंने कहा कि बैंक कर्मचारी है ना, बैंक भी बहुत सारे जो हमारे स्टेक होल्डर्स है उन साथ के लेना पड़ेगा। लेकिन क्यों ऐसे हो रहा है? जैसे अभी एक डिजिटल अरेस्ट की बात होती है, लोग कहते हैं कि कई बार केसेस ऐसा है कि आपके एक पार्सल आया है और वो पार्सल बॉम्बे में सीज हुआ है, उसमें चाइना जा रहा है, उसमें ड्रग्स मिल गया। तो एक डिजिटल अरेस्ट के प्लेटफॉर्म इसमें कुछ बच्चे, 21 साल का बच्ची से लेना, लड़कियां से लेके 75 साल ये लोग बुजुर्ग लोगों को लिए भी दोनों उसमें शामिल है। और साइबर क्राइम ऐसा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा उसको इंट्रोडक्शन देता हूँ, फिर मैं अपने जुडिशियल भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ऐसे कोई पर्टिकुलर खास समुदाय या कोई वर्ग जो उसका विक्टिम। पहले तो हम ये देख लेंगे, अगर एक बच्चे विक्टिम हो रहे हैं, अभी न्यूयॉर्क में एक मेयर ने अभी आपने किया कि हम लोग अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के खिलाफ में केस करेंगे, क्योंकि उसमें जो बच्चों के भावनाएं हैं, उनके जो इमोशंस है और उनकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है, उसको क्लॉग कर रहे हैं, उसको नेगेटिव मेंटालिटी की तरफ ले जा रहे हैं। एक बच्चों को देखते हैं, अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे कहते हैं अगर दूध नहीं पी रहा है, खाना नहीं खा रहा है, माँ कहते हैं मोबाइल देख लो। तो ये आदत हम बना रखे हैं, और उसका जो दुष्परिणाम है एक अलग पार्ट में मोबाइल के लिए शुरू होता है, साइबर के। वहां पे क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन बच्चा जहाँ थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, जो क्राइम हम देख रहे हैं उसमें टाइप किस टाइप का क्राइम आ रहा है। तो इसमें जैसे पहले ब्लू व्हेल वाला गेम आया था, टिकटॉक आपने वीडियो देख रहे हैं, फिर आपने जो डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स आप खेल रहे हैं, तो उसी पे एडिक्टेड हो जाते हैं, एक एडिक्शन का प्रॉब्लम है। फिर उसी के थ्रू में लोग सुसाइड भी करते हैं। तो एक बच्चों के साथ नौजवान जो है, अभी खास तौर पे उन पे दो किस्सा है, मेल और फीमेल है। फीमेल जो वुमेन विक्टिम ऑफ क्राइम, साइबर क्राइम है, उसके ऊपर बहुत लोग बात करेंगे, बात करते भी होंगे और डिस्कशन चलता रहेगा, तो मैं इसको ज्यादा नहीं जाऊंगा। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी का जो इशू है, जो चिल्ड्रन के साथ जुड़ा हुआ है, जो जुवेनाइल इश्यूज है, जो बच्चों किशोर लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और फिर यूथ वाला इश्यूज है, जहां इन टर्म्स ऑफ क्या कर सकते हैं कि आज जैसे आपने जैसे कहा ना, वैलेंटाइन डे का आ रहा है, अप्रोच कर रहे हैं, तो यूथ के साथ जो प्रॉब्लम हो रहा है, फोटो शेयर कर रहे हैं, वीडियोज शेयर कर रहे हैं, नो आपने डेटा बाहर चल रहा है, तो एक इशू उनके साथ है। फिर हम जो अभी लास्ट लॉट ऑफ सेक्सुअल सेक्सटोशन आप जो कहते हैं, कि आपने अभी किसने जिक्र किया था कि आपके पास ये फोटो आएगा, वीडियो आएगा, आपके नेकेडनेस आएगा, बोलेंगे फेसबुक पे डाटा चला जाएगा, तो फिर लोगों ने पैसा देना शुरू करते हैं। नो बहुत सारा इसमें हो रहा है। देन अभी जो अस्थाना जी कर रहे थे कि इसमें एक इशू है जो बूढ़े लोगों के साथ, बुजुर्ग लोगों के साथ होता है, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेकर, उनके मोटिवेशन, उनके हेल्थ को लेकर बहुत सारे क्राइम्स हमारे सामने धीरे धीरे आ रहा है। और इतना बड़ा परिमाण में उसमें जो जुडिशियल रिस्पॉन्स है, तो मेरे मेरे काम था कि जुडिशियल केसेस को रेस्पोंड कर रहे हैं। तो पहले स्टेजेस से लोग कहते हैं कि एफआईआर हो गया, फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन जब जुडिशियल के पास आता है, तो उसके कनेक्ट, उसके पहले इशू होता है कग्निजेंस लेने का, कि सही में क्राइम हुआ, क्या हुआ। देन उसकी एप्लीकेशन ऑफ लॉ, उसमें क्या एप्लीकेशन लॉ होता है। देन थर्ड इज ए इंटरप्रिटेशन, एंड फोर्थ में व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, आप कैसे जाएंगे। तो जुडिशियल के पास जो समस्या होता है, एक बहुत सा 90 अर्ली, जब तक इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं हुआ था, क्योंकि क्राइम बढ़ने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है, और इंक्रीजिंगली डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी भी हो रही है। और अपने दैनंदिन जीवन में जिससे अपने मोबाइल का, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, आईपैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज में कर रहे हैं, वो जाहिर सी बात है उसमें समस्याएं आएगी और यही प्रॉब्लम बढ़ते रहे। ठीक है। लेकिन जुडिशियल के क्या लॉ एक मैकेनिज्म, हम हमेशा कहते हैं कि बार बार हम यही कहते हैं कि अगर आप लॉ की बात करते हैं कि लॉ एक मीन्स है, लॉ इज नॉट एंड, इट्स ए मीन्स टू अचीव जस्टिस। लेकिन इसका एक लिमिटेशन भी रहता है। हाउएवर इतना छोटा सा लिमिटेशन है, हम लॉ को इसलिए मानते हैं कि वो प्राइमरी बाय एंड लार्ज वी टॉक अबाउट ए रूल ऑफ लॉ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अभी बात कर रहे थे भाई, क्या हमारे राइट, प्राइवेट राइट्स है, राइट, हमारे फ्रीडम्स है। तो हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स और हमारा ड्यूटीज अब कैसे डिफाइन है।
और उसके अंदर में भी हमारे जो इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है किस टाइप के हो रहा है। अंतिम कोर्ट के सामने केस तब आता है जब किसी ने कहा कि नहीं ये क्राइम है, आइडेंटिफाई। तो ये क्राइम को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तो इसलिए जितना हमें अच्छा क्राइम को डिफाइन कर पाएंगे, तो अभी अपने 2013 में जो अपने रेप लॉ का अमेंडमेंट हुआ है, उसने कहा कि क्या डिफाइन कर, तो इसलिए आपको जितना उसको इंक्लूसिव डेफिनाइट ब्रॉडअप नहीं करना है, इसको आपको डेफिनेट करना है, ताकि आप आसान से कह सकते हैं हाँ, ये इशू है। तो कोर्ट तब डिसाइड करे, अब उसके पास क्राइम आएगा, फिर वो कॉग्निजेंस लेगा। ठीक है, एक केस आपको मैं बताता हूँ जुडिशियल रेस्पॉन्स कैसे रहा। एक ऋतु कोहली वाला केस थी, जिस महिला ने, तो दिल्ली में केस थी, तो किसी ने उसका नंबर मिल गया, किसी हुआ फेसबुक आपने अप्रोच किया, फिर बार बार उसने उसका नंबर दे दिया, बाकी लोगों से शेयर कर दिया ना, सी इज ओपन फ्रेंडशिप, सी इज ओपन टू सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो बार बार उसके पास मैसेज आता रहा, वो हर पहुंच गया। देन शी वाज टेकन अबैक, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फाइनली शी हैड द करेज एंड कन्विक्शन कि मैं कोर्ट में पुलिस को जाओ एफआईआर दो। तो ये दर्ज हुआ, फिर देखा गया, पहली बार उसने क्या किया, साइबर स्टॉकिंग के बाद आया कि आप स्टॉक कर रहे हैं, डाटा लीक कर रहे हैं, आप उसको नो आउटरेजिंग द मॉडेस्टी। जो पहले हमारा जो आईपीसी का प्रोविजन था, अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया, तो उसका जो प्रोविजन था, उन्होंने कहा इस प्रोविजन को कि भी हम इट कैन आउटरेज द मॉडेस्टी इन साइबर स्पेस एज वेल। तो ये इशू पहले वाला था केसेस पे। फिर एक स्टेट ऑफ तमिलनाडु का एक केस है, इसमें मिस्टर एक व्यक्ति कुट्टी करके था, सुनील कुट्टी केस का था। उस केस में ये होता है कि एक बंदा ना, व्यक्ति ने क्या करता है कि कोई डाइवर्स वुमन है, तो वो उसका फैमिली का मेंबर था, दूर से रिलेटिव था। तो उसने क्या किया, उसके पास फोटोज भेजी, अपना अप्रोचेस भेजा, अपने बिल्कुल मोबाइल नंबर पता था, तो ईमेल आईडी पता था, तो फेक ईमेल आईडी बना के उसके पास शो अननेकेड फोटो ऐसे भेजता था। तो शिवाजी अगेन परेशान हो गई, और फिर उसने जाके कोर्ट में केस डाला, और पता चला क्या हो रहा है, कल्प्रिट पकड़ा गया। फिर कोर्ट ने कहा कि नहीं, यू हैव टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ दिस क्राइम। बाद में लोग कहते हैं ठीक है, ईमेल हो गया, आपका व्यक्तिगत रूप में कोई लॉस नहीं हुआ, आपका फिजिकल कोई हार्म हार्म नहीं हुआ, तो ठीक है, दैट इज ओके। लेकिन ऐसे नहीं हुआ, कोर्ट ने कहा नहीं, वी हैव टू टेक कॉग्निजेंस बिकॉज़ साइबर क्राइम बढ़ रहा है। तो मुझे कोर्ट के जो सेकंड कॉग्निजेंस लेने के बाद उनका जो इशू हो रहा है कि हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, हम इसको देखेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। सिमिलर केस में एक केस था, जो एक जो बंदा जिसमें किसी पास्टर के अंदर काम करता था, क्रिस्टियन पादरी के अंदर काम करता था, और उसके साथ फॉल आउट हो गया, दिक्कत हो गया, तो उस बंदा ने उसको निकाल दिया, तो इसी कोई और पास्टर के अंदर, पादरी के अंदर काम करना। लेकिन उसने क्या किया, एक जो काम होता है, एक पिक्चर फॉर्ज किया उसका फादर का, और उसका इसके बाप, उनका बेटा का, दोनों बाप बेटा का, और उनका लड़की का, तीन मतलब भाई बहन और फादर, तो तीनों का उसने नेकेड फोटो बनाया, उसको मॉर्फ करा, और उसको साइबर में चढ़ साइबर स्पेस में सभा थी। और लड़का जब देखा, उनका फादर नहीं देख पाया, लड़का जब देखा, उसने पापा क्या, पापा चलो अपने पुलिस कंप्लेन कर। फिर इंक्वायरी हुआ, उन्होंने बोला कैसे, कोर्ट ने क्या किया, फिर उसका कंप्यूटर सीज किया, उसका सॉफ्टवेयर सीज किया, सीडी सीज किया। देन अब केस सामने में आया, तो उसमें भी वो कॉग्निजेंस लिया कोर्ट ने, उसको अब कन्विक्शन भी कराया। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर हम केस देखते रहेंगे, तो हमें पता चल रहा है। लेकिन कोर्ट के सामने कई बार जो जो प्रॉब्लम्स कोर्ट के सामने होती है, वो क्या होता है, एक तो इशू कि पहले की एक चीज एविडेंस है कि नहीं। ठीक है, कोर्ट तो ये कहता है, कोर्ट आज हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट के आर नारायण जी लेट कहते थे, द कोर्ट्स आर नॉट कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, दे आर कोर्ट्स ऑफ एविडेंस। हमारी कॉमन लॉ कंट्री में, हमारी लीगल जुडिशियल सिस्टम में ऐसे होता है कि कोर्ट सबूत के ऊपर चलता है, सबूत मांगता है। तो सबूत को हमने डिफाइन करना पड़ता है कि भाई ये जो सबूत है वो किस टाइप का है। ठीक है, अपने ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, विटनेस है, तो सब हो। लेकिन डिजिटल एविडेंस को लेना क्या पड़ता है, बहुत साल पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर लेना है, फिर कहते हैं नहीं हमें ईमेल करना है, हमें उसको फिर वो लेना है, ईमेल को उसको लेके जाना है, तो डॉक्यूमेंट्री है। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डॉक्यूमेंट्स आज गुड आज डॉक्यूमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर आज गुड रिकॉर्ड्स आर, जैसे आपने और नॉन डिजिटल वर्क रिटन डॉक्यूमेंट्स है। तो फिर इसलिए आपको आपका लॉ उसको डिफाइन करना चाहिए। दैट इज व्हाई हमने अमेंडमेंट कराए। फिर हमने जो आईटी एक्ट लाए, क्योंकि आपने क्राइम किसने कहा, व्हाट इज अ क्राइम, क्राइम इज समथिंग व्हिच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, माला इन प्रोहिबिटम। लेकिन अब अगर हमको डिफाइन करना है कि एक क्राइम को हमने डिफाइन करेंगे लॉ के अंदर में कि भाई ये गलत है, फिर वो एविडेंस को हम डिफाइन करें कि भाई ये एविडेंस है, तो इसलिए नेसेसरी चेंजेस जो जरूरी होता है, जो परिवर्तन अवश्य होता है, तो कानून से परिवर्तन करना पड़ता है। तो कानून परिवर्तन करने के बाद कोर्ट ने किया
क्या भाई ये डिविडेंस ऐसे है। सीडी की बात आया, भाई सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। तो ये सारे जो हम इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड्स है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स व्हिच आर केप्ट इनसाइड, जिसको अंदर रहता है, तो हम उसको डिफाइन करने पड़ेगा, फिर उसको हम एनालिसिस करना पड़ेगा। आप नेक्स्ट सेशन में जाएंगे, जो आपको साइबर फोरेंसिक में बारे में बात करेंगे, फोरेंसिक एनालिसिस होगी, जिसे कहते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को, और डॉक्यूमेंट जहाँ स्टोर हाउस, वेयर डॉक्यूमेंट्स कैन बी स्टोर एंड वेयर कैन बी रिट्रीव्ड। तो साइबर स्पेस में डॉक्यूमेंट को स्टोर और रिट्रीव और मैकेनिज्म हम कैसे जुडिशियल तरफ से एविडेंस के रूप में लाएंगे, उसका एनालिसिस करेंगे और ठोस सबूत पेश करेंगे। ठीक है, तो पेगासस केस आप लोग सब जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लेकिन हुआ केस ने, कोर्ट ने कहा कि पेगासस केस में हम ये डिसाइड करेंगे, एक कमेटी, जुडिशियरी के पास भी ये टाइम नहीं होता है कि एक्सपर्टीज नहीं है कि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एनालिसिस करेगा, उसको वो करेंगे। इसलिए उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया, क्योंकि जो कंप्यूटर डील कर रहे हैं, इंफॉर्मेटिक्स डील कर रहे हैं, दे आर एक्सपर्ट्स। तो इसलिए क्या होना पड़ता है, फिर हमें उसको साइबर सेकंड स्टेज में जाएगा। पहले तो ये इशू होता है कि हम उसके एविडेंस मान लेंगे, लेकिन और एक जो जुरिडिक्शन का इश्यू है, अगर वो कहाँ आया है, बिकॉज हमारा कोर्ट ने हमेशा ये कहता है कि भाई ये पर्सन ने किसी को इसमें कोई हार्म हुआ, कोई हानि पहुंची, कोई क्षति पहुंचा है, तो फिर देखेंगे वो माध्यम क्या है और माध्यम कैसे हम डिफाइन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने ये भी कहा कि भाई कि सीडी, अब इसमें दो बड़ी नेफारियस केस था, दिल्ली आर्मी में पब्लिक स्कूल का केस था, जहाँ पे एक 16 साल के बच्चे को ने कोर्ट ने इस साइबर क्राइम को अंदर पकड़ा गया, क्योंकि उसने एक एमएमएस बनाया वीडियो और उसको स्प्रेड किया। बाद में इसी का एक सीडी बनाया और सीडी को उसने क्या किया, किसने, एक बाजी.com को अंदर डाल दिया। अच्छा, हमारे जो साइट्स होते हैं, आप अमेज़न से खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं, वो भी इसने क्या है कि ये एक सीडी है, डीवीडी, आप उसको खरीदो। फिर कोर्ट ने क्या किया, उसके मिस्टर तो अविनाश थे, अविनाश बजाज, तो अविनाश बजाज वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में क्या केस किया, तो उसके उसको पकड़ा कि बाजी.com का जो सीईओ है, उसको कहा कि नहीं, आपके खिलाफ में केस दर्ज होगी, क्योंकि ये आपका जो वेबसाइट है उसने इसको सेल किया, राइट। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई अगर हम वेबसाइट है, हम एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर है, एक प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म में जो क्या कंटेंट हम डील कर सकते हैं, एक तो सही बात है, मैकेनिज्म है, लेकिन हम आप में कहे मैं चेयर खरीदूंगा, लेकिन चेयर अगर मैं मार्केट में बेच रहा हूँ, या कोई फोन बेच रहा हूँ, लेकिन फोन के अंदर कोई चिप्स है और चिप्स के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, तो क्या कंटेंट है, तो क्या हम कंटेंट को एक्चुअली मैनिपुलेट कर सकते हैं, या कंटेंट को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, डिवाइन कर सकते हैं, और क्या इसके बेसिस पे हमारे खिलाफ फौजदारी मुकदमा चल सकता है। फिर कोर्ट ने डिसाइड किया नहीं, डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं था वो बंदा, उनके फिर बेल का केस चला, लेकिन जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, फिर उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास आज तक जो डील करना है, जो जुडिशरी के सामने आता है, वो केस क्या होता है कि ओनली हमारे पास एक आईटी एक्ट है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अमेंडेड इन 2009, फिर सबमेंडेड 2013, वो हमारे पास के एक डॉक्यूमेंट, एक लॉ है, जिसको हम उसके एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे, उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेकिन मेरा समस्या है, जो मैं कहता हूँ कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनी थी, वो खास तौर पे ई कॉमर्स को, जो आप आज देख रहे हैं अमेजन में, फ्लिपकार्ट में ना, या मिंत्रा में आप देख रहे हैं, इन संस्थाओं की, इन कंपनियों के कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो सकता है, उसको फैसिलिटेट करने, डिजिटल पेमेंट के एक्सेप्टेंस करने के लिए ये सिस्टम बनी, लेकिन वो साइबर क्राइम को लेकर नहीं बना। ठीक है, कुछ हद तक हमने उनको डिफाइन कर दिए, सेक्शन 60, अभी आप देखेंगे सेक्शन 66 से लेकर ए बी सी डी एफ तक लेके 69 तक हमने वहाँ पे बहुत सारा प्रोविजंस है। 73 में सीआरपीसी में हमने उसको 73 ए में हमें उसको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के माने, सिग्नेचर के माने। तो इसलिए हिसाब में एक कानून को जब हम लेते हैं, तो उन्होंने कुछ उपलब्धियां हैं और कुछ प्रोविजंस है, जिस प्रोविजन के तहत उन्होंने डिफाइन किया ये क्राइम है, उसका दंड है। सिमिलरली वो कहता है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, जिसके पास इन्फॉर्मेशन, एक केसेस आया अभी, एम्फासिस करके कंपनी था पुणे में, तो वो कंपनी ने किसने आउटसोर्सिंग, अमेरिका ने कुछ क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आउटसोर्स किया, और उसका एक एम्प्लॉय ने उन्होंने क्रेडिट कार्ड डॉक्यूमेंट को डील कर लिया, और उसके करने के बाद उन्होंने क्या किया, इसमें कुछ कई बिलियन डॉलर के ट्रांसफर किया। तो बैंक फ्रॉड बड़ा कैसे, 81 बिलियन डॉलर एक कंपनी ने ट्रांसफर बाकी बैंक से ले गया था, बांग्लादेश से। ठीक है, तो बैंक फ्रॉड में उसने क्या किया, फिर उन्होंने कहा भाई जो एम्प्लॉय है, उन्होंने कहा भाई एम्प्लॉय आते हैं, इसलिए बहुत सारा जो साइबर नेटवर्किंग कंपनीज है, साइबर कंपनीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, वो क्या करते हैं, आपका मोबाइल फोन, आपका जो डिवाइस है, सो बाहर रखते हैं। वो एक प्रोसीजर है।
निष्क्रिय, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, हैकिंग कर लेते हैं उसको। उनका एम्प्लॉय अगर यहाँ ट्रांसफर होकर वहां चला गया, या अथवा एक कंपनी छोड़ दूसरा कंपनी चला गया, सम इंफॉर्मेशन आर देयर। ठीक है, तो उसने कहा कि नहीं, अच्छा इसमें एक केसेस में क्या हुआ, एम्फासिस के बाद एक और केस आया जहां पे कुछ लड़की और लड़कों का दोनों एम्प्लॉय थे बैंक। तो उन्होंने क्या किया, दे हैड रिलेशनशिप, लेकिन रिलेशनशिप पे वांटेड टू बी मैरिड, लेकिन कुछ शोर हो गया, कोई घटना घटित हुआ, तो उनकी शादी नहीं हो पाई। तो उन्होंने, फिर लड़की ने क्या किया, कुछ लड़कों का मेल से, दे हैव एक्सेस टू ऑफिस मेल, तो अपना जो क्लाइंट है उनके पास मेल भेजने लगी। उसने एक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया करके फ्रॉड अपना वेबसाइट, अपना ईमेल खोली, और उसी से अपना जो क्लाइंट्स है उनके पास भेजा, क्योंकि ऑफिस का बैंक डॉक्यूमेंट है, ऑफिस का बैंक है, और वो ना बैंक का कंप्यूटर है, तो उसमें ऑथेंटिकेट हो जाती है। लेकिन ऐसे टाइप क्राइम हो रहा है जहां पे उसको देखना पड़ता है कि ये जो सोर्स है सब कम्युनिकेशन, कहाँ पे सोर्स कोड है, इसलिए सोर्स को देखना पड़ेगा, किसने एक्सेस किया देखना पड़ेगा, और फिर वो क्या डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा। ये तीनों चीजों को अगर हम लेके चलते हैं, तो फिर वो इसलिए ये होता है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अनफॉर्चुनेटली कोर्ट क्या करता है, जब डॉक्यूमेंट होता है फिर इन्वेस्टिगेशन भी होता है। इन्वेस्टिगेशन कोर्ट का रोल नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन बाय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। तो इसलिए हम कहते हैं प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी। अगर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी सही से इन्वॉल्व नहीं कर पाता है, और वट एवर टेक्निकल प्रॉब्लम है जो भी है, आ टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है, आ मैन पावर इश्यू है, देन फिर अपने आपको जस्टिस नहीं मिल सकता है, राइट। तो मैं कहना है कि जो किस्सा हम, ये जो केसेस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो डिफरेंट वेराइट केसेस है, ठीक है। जहां पे अभी एक डिप फेक का इशू आया, कितना बड़े बड़े लोगों का डिप फेक का इमेज आ गया, व्हाट हैपन, क्योंकि के बाद में पता चला कि आपका नहीं है, वो होगा, वो अलग बात है, लेकिन डैमेज इज ऑलरेडी डन। तो इसमें जो आदमी इमोशनली प्रताड़ित होता है, या उसका रेपुटेशन को हानि पहुंचता है, तो क्या कर सकते हैं। तो कोर्ट ने इसलिए क्या किया, हमारे पास जो उसको फैसिलिटेट करने के लिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात आई। तो अभी तो बिल है 2023 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि डाटा करना है, उस पर करना है। Then it also try to fix responsibility with internet service providers और internet companies, best companies। तो उसने बहुत सारे लोग कहे, गूगल कहा है, फेसबुक कहा कि नहीं हम नहीं होंगे, that is also our rule, and then they have gone to the court। कोर्ट ने भी कहा कि नहीं नहीं, अगर जहां पे पब्लिक इंटरेस्ट है, नेशनल सॉवरेनिटी है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे कुछ साइबर क्राइम्स के जो थर्ड इशू पुलिस के कोर्ट साथ होता है, वो जुरिस्डिक्शनल इशू है। आज इसमें होता है क्या, आप बैठे भोपाल में या बॉम्बे में, आपके साथ फ्रॉड हुआ, वो हरियाणा में, और आपका बंदा जिसने बट वो किया, जिसके कंप्यूटर बना हरियाणा, जो बंदा कंप्यूटर बना कहीं और से, और वो पैसा जाता है एक न्यूजीलैंड का बैंक से, या जो आपने से टैक्स हेवन से, नाइजीरिया से, तो बहुत सारे नाइजीरियन फ्रॉड होती है। तो उसके कारण क्या होता है, फिर तो जुरिडिक्शन कैसे हो, क्योंकि आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो कोर्ट कहता है भाई हमारा जुरिडिक्शन नहीं, हम नहीं कर सकते। तो ये जुरिडिक्शनल इश्यूज पे मेजर प्रॉब्लम है जो जुडिशियल के सामने है। तो कहीं किसी किसी एक मामला में कोर्ट ने भी अपना जुरिडिक्शन तय किया कि साइबर स्पेस से कहीं भी हो सकता है, हम मानो जो विक्टिम है उसको रिलीफ दे सकते हैं। जुरिडिक्शन शुड नॉट बी एन इशू। लेकिन अब जुरिडिक्शन इशू कब होगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मेरा फोटो और यूज किया, मिस यूज किया, और न्यूजीलैंड में है, और हमारे न्यूजीलैंड, और हमारे टीटी नहीं है, वहां पे साथ कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन नहीं है, तो फिर कैसे हो सकता है। तो इसलिए इंटरनेशनल क्राइम क्राइम के लिए काउंसिल ऑफ यूरोप ने बुदापेस्ट में कॉन्फ्रेंस बनाया था। इसमें अमेरिका भी पार्टी, मतलब आज हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो ऑब्जर्वर थे। इंडिया ने उस ट्रीटी को साइन नहीं किया, उसके कारण ने इंडिया ने कहा कि भाई इसमें हमारी सॉवरेनिटी का इशू है। और सॉवरेनिटी का इशू इसलिए होता है, चाहे आपका याहू को हो, चाहे आपका गूगल को हो, सबका सर्वर जो मेन सर्वर सो यूएस में है। तो जो आप डेटा आप यहाँ से शेयर कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो दे ऑलवेज हैव एक्सेस टू दैट। तो ये मेजर इशू है। सिमिलरली जो हम देख रहे थे इसमें, तो कोर्ट के सामने जो कंटेंट है, जो कोर्ट के सामने जो एविडेंस है, कोर्ट के सामने जो जुरिडिक्शन है, अन कोर्ट के सामने जो लॉज अवेलेबल है। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट है। और मैं जो केस अपने साथ थोड़ा सा बात किए थे कि सेक्शन 66 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा, एक क्योंकि वो एक ब्रॉड था, उसको हम श्रेया सिंघल वर्सेस वाला केस कहते हैं। श्रेया सिंघल वाला केस में कोर्ट नहीं कहा कि भाई प्राइवेसी राइट, ठीक है, एक व्यक्ति का एक पर्सनल ओपिनियन है, आपने बम्बे बंद कर दिया, नो इवेंट ऑफ डेथ ऑफ पॉलिटिकल लीडर, उसने कहा कि भैया अब इसमें बड़ा समस्या है रहा है, इसकी कोई मर गया तो ठीक है, तो व्हाई शुड वी ऑल बी सफर फॉर दैट। ठीक है, वहां पे सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है। पोर्नोग्राफी के इशू है, एक शिवकुमार पांडे वर्सेस अपने मकबूल फिदा हुसैन वाला केसेस है। तो कोर्ट ने कहा कि हम डिफाइन करेंगे यहाँ ये पोर्नोग्राफिक है जो इट इज अगेंस्ट पब्लिक मोरालिटी और नॉट।
तो फिर कोर्ट ने उसके एक कम्युनिटी स्टैंडर्ड की बात की। तो ये जो अगर कोर्ट केसेस हम देखेंगे, मैं आप लोगों को जो लॉ के सामने बारे में, कोर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी रखते नहीं है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि कोर्ट जाना, केस को लेना और वो उसका आखिरी नतीजा तक पहुंचना एक समय की बात है और लंबी समय तक लगता है। कई बार हम लगता है कि कोर्ट जाके यार जैसे विक्टिम हम नहीं, हम अग्रेसर हैं, हम ही बार-बार कोर्ट दौड़ रहे हैं। ये सब समस्याएँ कोर्ट के साथ होती है। लेकिन कोर्ट की भी जो मजबूरी, जो समस्या है उसको देखना पड़ेगा। बिकॉज़ कोर्ट हैज़ टू एक्ट क्या इन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो इसलिए डाटा प्रोटेक्शन लॉ कहता है ये ठीक है। अगर इसका प्रोविजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कोर्ट खत्म कर देता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हमें डाटा प्रोटेक्शन नहीं लाना है, क्योंकि बहुत सारा जो आपके फेसबुक कर रहे हैं, बहुत सारा जो फेक आप एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका डाटा लेते हैं और डाटा शेयर भी करते हैं। लेकिन जब तक हमने फिक्स नहीं करते हैं कि भाई डाटा शेयरिंग का पनिशमेंट क्या है? क्या डाटा शेयर कर सकते हैं? और इससे एन्क्रिप्शन कैसे होना चाहिए ताकि शेयर हो सकता है? ठीक है, बैंकिंग, डिफेंस, दे आर ऑर्गनाइजेशंस वेयर they have used high end mechanisms to protect their system, but that is not available to public. But in the end of the day क्या हो रहा है, जब पब्लिक है तो उसकी ज्यादा दे आर मोर वल्नरेबल। और खास तौर पे पीपल, जो लोग का इसे चाहे जुवेनाइल से जहाँ में किड्स है ना, बच्चे हैं या अथवा बूढ़े बुजुर्ग हैं, दोनों जो या महिलाएं हैं, जो तीन किस्सा हम देख रहे हैं, दे आर वल्नरेबल। तो उनको अगर उपयोजित प्रासंगिक सिस्टम हम नहीं दे सकते, तो फिर क्या हो सकता है? इसलिए ये जरूरी ये है कि वी हैव टू फाइंड ए मैकेनिज्म अंडर कोड, बट कोड आज से कि एक लिमिटेशन, एक दायरा तक है, आगे नहीं जा सकते। जैसे बट इसलिए करना क्या पड़ता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको प्रिवेंट करना। अब प्रिवेंशन कैसे होगा? जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, जब तक हमारे सामने ऐसे आलोचना और डिस्कशन नहीं हो पाएगा, तब हम इसके संबंध में अवेयर नहीं कर सकते। और वल्नरेबल सेक्शन को, हमारा सिस्टम को फुल प्रूफ करने का जरूरत होता है। कुछ हद तक सरकार कर सकते हैं, लेकिन बाकी तक अपने आप करना पड़ता है, क्योंकि सरकार के ऊपर सारा हम छोड़ नहीं सकते हैं। ना सरकार हम हमेशा हर कदम में आपके साथ सहायता दे सकती है। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन की बात है, पुलिस की बात होता है, इसलिए हम कहते हैं ये ट्रेनिंग पुलिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा था कि मैंने गाय, हमारा उस समय एक डोंगल में यूज़ करते थे, डोंगल खो गया। हमने गए थाना में, उसने कहा ठीक है आपने गुमशुदगी का लिखा दो। तो बाद में उसने कहा हिंदी में लिखो, हम लिख दिए। बाद में कांस्टेबल पूछा, तो कांस्टेबल राइटर था, वो पूछा, सर ये बताइए डोंगल होता है क्या? अब मुझे तब आ गया, मैंने बोला आप डोंगल जानते नहीं, इंक्वायरी कैसे करोगे? उसने कहा कि सर हम तो 9th पास है कि 10th पास है, हम अगर डोंगल होता तो हम आपकी जगह में नहीं पढ़ाते, हम क्यों कांस्टेबल बनते? लेकिन कांस्टेबल को इंक्वायरी करना पड़ेगा। हमने कह दिया डीएसपी इंस्पेक्टर, लेकिन जब भी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर ये साइबर क्राइम, इसका मैकेनिज्म, उसका प्रोसेस नहीं जानते, तब फिर वो बिल्कुल फेलियर होगा। ठीक है, एमआईटी ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर ने एक www.cybercrime.com करके कर रखा, वेबसाइट डाल रखा है, लेकिन कितना हिट यहाँ हो रहा है, कितना लोग कंप्लेन कर रहे हैं, वो नहीं। एनसीआरबी डाटा कह रहा है कि अब जितना क्राइम हुआ, करीब करीब जो कॉमन क्राइम से थेफ्ट है, डकैती है, रेप है, मोलेस्टेशन है, तो वो अगर 8 लाख के 16 लाख के करीब करीब हमारा साइबर क्राइम है। तो इसलिए हमें एक एंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म, डेडिकेटेड स्टाफ करना पड़ेगा उसके लिए। अगर और कम्युनिटी लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ग्राम पंचायत लेवल पे अगर नहीं करते हैं, कम से कम ब्लॉक स्तर में एक साइबर सिक्योरिटी सेल बनाना पड़ता है, जहाँ पे लोकल अधिकारी रहेंगे, इसके समस्या को आके ही पहुंचेगा, तो वो हो सकता है इमीडिएटली एक्शन ले सकते। प्रिवेंशन काफी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, और आपने मुख्य बातें लास्ट में कही कि निचला स्तर पे भी पुलिस को ट्रेनिंग करने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग ट्रेंड कर सके, पुलिस भी ट्रेंड हो, साथ साथ में हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो भी ट्रेंड हो। तो ब्लॉक स्तर पे भी इस तरह के कार्यक्रम होना चाहिए। मैं चर्चा को आगे लेते हुए डॉक्टर विनी शर्मा को भी ज्वाइन कराना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपका और शुभ्रा मैम को बहुत ही ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मस्तक पर दस्तक पर के समराइज्ड वाले सेशन में दोबारा से एक बार इनवाइट किया है। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। एंड सिंस मैं सर से और मैम से पहले भी बता चुकी हूँ, सर को मैं अभी टेक्स्ट भी कर रही थी, ठीक है, तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, मैं सिर्फ 10 मिनट का टाइम लूंगी। क्योंकि देखिए, जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो अस्थाना सर ने नेशनल लेवल पे जितने हमारे लॉज हैं,
जितने हमारे एक्ट्स हैं, जो हम नए बिल निकाल चुके हैं, उन सब के बारे में अस्थाना सर ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया। फिर उसके बाद मोहंती सर ने भी काफी डिटेल में, बहुत ही सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह से जरूरत है ग्राउंड लेवल पे एजेंसीज के साथ हमें बात करने की। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ इंटरनेशनल लॉज के बारे में, क्योंकि जब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्थाना सर ने भी बोला, उससे पहले हमारे साथ सर जुड़े हुए थे, उन्होंने भी यही बात बोली कि हमें बहुत सारा डाटा ऐसा होता है जो कि हम लोग पेपर वर्क के हेर फेर में ही रह जाते हैं। हम पेपर वर्क करते हैं, हम कंपनी से, हम बैंक से डाटा मांगने की कोशिश करते हैं, टाइमलाइन अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन में आगे प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं वही वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। देखिए, जब हम इंटर साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो साइबर क्राइम के अंदर जो हमारे सेंटर्स हैं, सर्वर्स हैं, जो कंपनीज हमें ये प्लेटफॉर्म्स दे रही हैं जिनके थ्रू क्राइम्स हो रहे हैं, स्पेसिफिकली स्पीकिंग द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन सब की गवर्नेंस जो हो रही है, जो उनके गवर्निंग लॉज हैं, वो दूसरी एजेंसीज हैं, दूसरी कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है। हेलो रक्षित सर। सो ऐसे बहुत सारे चीजें हमारे साथ हिंडर करती हैं, जो कि हमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हिंडर देती हैं। इसका एक बहुत ही सीधा सा एग्जांपल है, जब हमारे यहाँ पे 2019 में आईटी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, अमेंडमेंट वाला, सभी को याद होगा, आप सभी ने व्हाट्सएप के अंदर एक आई एग्री करके एक नोटिफिकेशन पे क्लिक किया था, क्योंकि आपको एक मैसेज देना शुरू कर दिया था कि अगर आप हमारी नई पॉलिसी के साथ एडहेयर नहीं करेंगे तो हम आपके व्हाट्सएप अकाउंट्स को नहीं ऑपरेट कर पाएंगे। उसका रीजन यही है कि हम बहुत सारे जो हमारे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम्स एसोसिएशंस, ओके, मीनिंग दैट देयर आर the laws that are involved into investigation point of view, and specifically speaking getting the data out of them, we have to speak with the people in terms of the cross border laws we have to talk about. तो जब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नीड टू एस्टैब्लिश सर्टेन इंटरनेशनल पॉलिसीज। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने भी अभी रिसेंटली साइबर क्राइम के ऊपर काफी एम्फेसाइज किया है अभी अपने रिसेंट टूर्स में, जिसके अंदर उन्होंने ये बोला है कि हमें एक इंटरनेशनल पॉलिसी की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके भी हमें एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशंस का एक ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ट्रांसनेशनल क्राइम्स, यूएनओटीसी, जिसके अंदर ट्रांसनेशनल क्राइम बोले तो क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स के बारे में इन्वेस्टिगेशंस, पॉलिसी, ट्रीटीज वगैरह साइन होती हैं। Not going into detail of it, but there are 4 transnational crimes which are listed there. And recently in 2022, they have given cybercrime the status of a potential transnational crime. It is still not being covered as a transnational crime. So there are certain hindrances which we all are experiencing. Number one being the unawareness. ओके अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस सेशन से पहले सर एक प्रोफेसर से डॉक्टर साहब अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे, एंड आफ्टर लिसनिंग टू हिम व्हाट आई केम टू एन अंडरस्टैंडिंग दैट continuously he was being a victim of the cyber crime by one mode or the another, okay? And ignorance, कहते हैं कि there is a proverb, कहते हैं ignorance is a bliss. But in case of cybercrime, ignorance is not a bliss. Ignorance is something that will lead you to be a victim of cybercrime. Because once you entertain such cases, once you entertain such a call, you will become a potential target for them. कि अच्छा चलो इस तरह से नहीं तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से नहीं तो इस तरह से बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे बहुत ही सिंपल हमारे पास तरीके अवेलेबल है। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि अभी पिछले 4-5 दिनों से एक नया तरह का क्राइम का एमओ स्टार्ट हो चुका है। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, पेरेंट्स को पता है कि बच्चा हमारा एग्जाम देने गया है, बच्चे के पास 3 घंटे तक फोन का एक्सेस नहीं होगा,
बच्चे के पेरेंट्स के घरों में फोन जा रहे हैं कि आपका बच्चा इस तरह के क्राइम में फंस गया है, आपके बच्चे का नाम आ गया है, हम इस थाने से बोल रहे हैं, हम उसको बचा सकते हैं, आप इतना पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। पेरेंट्स बच्चे को फोन लगाते हैं, फोन लगता नहीं है क्योंकि बच्चा एग्जाम दे रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं बच्चे से। और अल्टीमेटली there have been instances where parents have been transferring money and this is coming, क्योंकि फरवरी मार्च का महीना है, बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो एक नया मॉडस है। तो जब हम साइबर क्राइम की बात कर रहे हैं, जब हम चीजों की बात कर रहे हैं, तो आपको सभी जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो हमारे लिसनर्स हैं आज, उन सबसे मेरा एक बहुत ही सिंपल टर्म्स भाषा में अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, आपके पास किसी भी तरह का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, आपको कोई ये बोल रहा है कि इस पे क्लिक करो, तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे या 100 रुपए मिलेंगे या 500 रुपए मिलेंगे, तो प्लीज बिलीव मी दिस, आज के जमाने में लोग फ्री में एक दूसरे को एक गिलास पानी तक नहीं पूछते, तो आपको एक क्लिक करने के लिए कोई क्यों 1000 रुपए दे देगा। So please listen to your common sense and listen to your gut feeling and try and understand this fact that there are a lot of cases where people are becoming a victim of cybercrime just because of this kind of luring advertisements and concepts which has been coming forward. So sir, that will be all. My 10 minutes are up. So I'm not going to take more than that. क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ऑलरेडी हम लोग लेट हो रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर विनी। और बहुत सही बात है कि आज के जमाने में तो कोई पानी को पूछता नहीं मुफ्त में, तो मनी कहाँ से देगा मुफ्त में, सच बात है। और पर लोग मुफ्त का लेना चाहते हैं और इसी में लगातार कई प्रकार के साइबर ठगों का शिकार भी हो रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल पे डॉक्टर विनीश शर्मा जी थी, साथ ही हमारे डॉक्टर अस्थाना जी रहे और डॉक्टर तापन मोहन जी रहे।